Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 8th lecture on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 8th lecture, and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about multivariable optimization and then some unconstrained optimization problems. Okay, so what is multivariable optimization? Well, we started off with one variable optimization in which the objective function was just one single independent variable. Okay, but everything cannot be covered in one independent variable. Most real life scenarios will have multiple variables. So when we talk about the objective functions which have more than one variables, then we call it the multivariable optimization. In this course we have basically only talked about two variable optimization. Okay, the rest of the theory about multivariable optimization, 3 variables, 4 variables and similar, at least at the level of calculus, is similar to 2 variables, right? So we do not go into too much detail of that, but as and when we come up with some functions which have 3 variables, 4 variables, so we refer back to this 2 variable theory, and then we can work accordingly on that. So multivariable optimization, we talked about objective functions, how can we optimize them, basically how can we maximize them or minimize them. That's optimization, right? So finding the maxima or minima. So then we did a few examples of that. So multivariable optimization, I told you what is relative maxima in 2 variables. I also told you what is relative minima in 2 variables and absolute maxima and absolute minima in 2 variables. Then we also talked about extreme value theorem for 2 or more variables basically. So we said that if a function is continuous on a closed and bounded region, then it will have an absolute maxima and absolute minima in that region, right? So similar to one variable theorem, basically extreme value theorem. Okay, then we had a very important result that if a function has a relative minima on some open disk, let's say, or on a region, then at that point where the function will have a relative maxima or relative minima, first partial derivatives will be 0. Okay, so then we gave a similar definition of critical points as we had in one variable case. So critical points in 2 variables were all those points on which the first partial derivatives of the function vanish, okay, or all those points where the one of the partial derivatives is undefined or both partial derivatives are undefined, right? So this is what we have in critical points. So जैसे हमारी क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन 1 वेरिएबल के केस में थी, इसी तरह की हमारी डेफिनेशन 2 वेरिएबल के केस में, और इसी तरह आप थोड़ा सा इसको देखेंगे ना तो इसको 3 वेरिएबल के केस में भी आप बना सकते हैं, और हायर वेरिएबल जहाँ तक आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन और इस तरह की चीज़ें. ओके, सो फिर आपने रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है. आपने क्या करना है, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो फाइंड करना है किसी फंक्शन के, और उनके ऊपर उनको आप चेक करेंगे फिर कि ये रिलेटिव मैक्सिमा पॉइंट्स हैं या रिलेटिव मिनिमा पॉइंट्स हैं. अब अगर वो रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है तो वहाँ पे हमारे पास 1 वेरिएबल में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था. यहाँ पे भी हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सेकंड पार्शियल्स टेस्ट. तो उसमें क्या करते हैं, अगर फंक्शन के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हों तो फिर हम एक डिस्क्रिमिनेंट बनाते हैं जो f(x)(x), सो partial derivative with respect to x 2 times, और फिर partial derivative with respect to y 2 times minus f of x y, so mixed partial derivative with respect to x and with respect to y and its square. So ये आपका discriminant है. इसके of course जैसे मैंने last time आपको remark दिया था, इसके behind mathematical
थेरी है क्यों मैक्सिमा और मिनिमा इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए ज़ाहिर आपको कैलकुलस में जाना पड़ेगा और आपके जो पहले के कोर्सेज हैं उसमें इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे, इतना मैथमेटिक्स की साइड पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ओके, सो अब फिर ये था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो और जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी ग्रेटर देन 0, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेस देन 0 हो, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट खुद ही लेस देन 0 हो जाए तो हम कहते हैं ये सैडल पॉइंट है, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं है। और फिर फाइनली अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है या सैडल पॉइंट है। तीनों सिनारियोज में से कोई एक भी हो सकता है, तो उसको फिर हमें फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सिनारियो। ठीक है, ओके, सो जितने भी हमने इसके अंडर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स देखे हैं वो सब के सब अनकॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं थी एज सच कि ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो इसके साथ साथ आपके पास और क्या होल्ड करना चाहिए, कोई कंडीशन भी इसके ऊपर लगाई गई। तो ये सब के सब अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं वो अनकॉन्स्ट्रेंट नहीं होते। सो अगर हमारे पास ऐसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हों जिनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, तो फिर उनको हम कैसे डील करेंगे और उनकी बात कैसे करेंगे, तो ये ज़्यादातर आज के पोर्शन जो हमारे लेक्चर का इसके ऊपर बेस्ड होगा। लेकिन अनकॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हमने सॉल्व किए हैं, 3-4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 1-2 हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो मैथमेटिक्स के थे, लेकिन उनके बिहाइंड भी, हर प्रॉब्लम के बिहाइंड कोई ना कोई मैथमेटिक्स की चीज़ चल रही हो, कोई ना कोई रियल लाइफ की चीज़ हम कोशिश करते हैं चल रही हो। ऐसे ही हम अपनी मर्ज़ी से प्रॉब्लम्स यूजुअली नहीं लिखते हैं। ओके, सो हमने ये बात कर ली अभी तक कि मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और उसमें अनकॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम 1-2 और एग्जांपल्स देखेंगे मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की। अनकॉन्स्ट्रेंट होंगे ज़ाहिर है, अभी कॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की हम बात नहीं कर रहे, तो 1-2 और एग्जांपल्स ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं, कोई अगर अभी तक एम्बिग्विटी है तो वो क्लियर हो जाए, ताकि हम जब आगे चलें तो पीछे वाली चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर हों। तो 1 या 2 एग्जांपल्स मैं और इसकी कर दूंगा, फिर मैं मूव हो जाऊंगा कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पे। तो ऐसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिनके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन कॉन्स्ट्रेंट लगी हुई होती है, तो जब हम इस पे पहुंचेंगे फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और लेग्रांज मल्टीप्लायर, जो जब भी कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो इनिशियली हम उसको लेग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में काम करेंगे, 2-3 लेक्चर्स अगले हम लेग्रांज मल्टीप्लायर पे स्पेंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत सारे केसेस में हम लगाते हैं इसको। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है कि हम अगर प्रॉब्लम लेग्रांज मल्टीप्लायर से हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसके अलावा और जो मेथड्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ये वाला मेथड काफ़ी हेल्पफुल है। और ये आपने सबसे अच्छी बात ये कि आपने ये कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, तो कैलकुलस की चीज़ है लेग्रांज मल्टीप्लायर। फिर इसकी जो इनिशियल चीज़ें हैं वो आपने कैलकुलस में देख ली हैं, लेकिन इसके हम कुछ वेरिएंट्स पे स्टडी करेंगे जो आपने कैलकुलस में नहीं देखे होंगे। तो इनके वेरिएंट्स में हम ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे, कुछ और इसके ऊपर इसकी मॉडिफिकेशनें करेंगे, जिससे लेग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड और ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। तो जहाँ तक आपने देखा कैलकुलस में, उसमें भी आपने ये नहीं देखा होगा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल चीज़ें हम करेंगे आज इंशाल्लाह, और फिर इसके बाद हम आगे इंशाल्लाह मूव हो जाएंगे। ओके, सो एक एग्जांपल और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि 3 alleles alternative versions of a gene A, B and O determine the 4 blood types। तो ये आपके लिए नोन है चीज़ के ब्लड टाइप्स होती हैं, ए होती है, ए होती है, AO, BB, BO, O और AB।
ठीक है। तो ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स होती हैं, ये सारी ब्लड टाइप्स होती हैं ना। तो अब ये 3 टाइप्स ऑफ जीन्स होती हैं, ए, बी और ओ। ठीक है, एक ही जीन के 3 वर्जन होते हैं, ए, बी और ओ, जो इन ब्लड टाइप्स को डिटरमिन करती हैं। ठीक है, तो इनके अलावा कोई और लेटर आपने नहीं सुना होगा ए, बी और ओ के अलावा। बाकी सब मतलब ए, बी भी अगर बना रहे हैं आप, इसी से मिला के उसको बनाते हैं। तो ये 3 बेसिकली एक जीन की टाइप हैं जो डिटरमिन करती हैं कि एक पर्सन का ब्लड टाइप क्या है। ठीक है, अब या तो आपका ब्लड टाइप ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। ठीक है, ये 3 ब्लड टाइप्स हैं। फिर इनके मिक्स्ड ब्लड टाइप्स भी हो सकती हैं ना, जैसे ए और ओ हो सकती है, बी और ओ हो सकती है, ए बी हो सकती है। तो ये इनकी मिक्स्ड ब्लड टाइप्स भी हो सकती हैं। तो अब हार्डी और वाइनबर्ग का लॉ ये कहता है कि proportion of individuals in population who carry 2 different LLS is this। वो ये बता रहा है कि कितने प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन की है वो उनमें मिक्स जो है वो ब्लड टाइप हो सकती है। बेसिकली एक से ज्यादा वर्जन्स हो सकते हैं इसी जीन के। ठीक है, एक वर्जन तो होगा ना, लेकिन एक से ज्यादा वर्जन, सबका ब्लड टाइप जो ए तो नहीं होता, सबका ब्लड टाइप बी भी नहीं होता, सबका ब्लड टाइप ओ भी नहीं होता, मिक्स होते हैं ना कुछ लोगों के ब्लड टाइप्स। तो जब मिक्स हो जाते हैं इसका मतलब है एक ही पर्सन में एक जीन के एक से ज्यादा वर्जन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन में एक से ज्यादा वर्जन्स इसी जीन के हों तो उसकी ब्लड टाइप फिर मिक्स हो जाती है। तो ये हार्डी और वाइनबर्ग लॉ ये कहता है कि if a person has mixed blood type, basically 2 versions of this gene, तो उसकी proportion जो है ना P, वो ये होगी। ठीक है, वो P किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये स्मॉल p जो है और ये स्मॉल q जो है प्रोपोर्शन है, जिसमें प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की, जो जिनमें ब्लड टाइप A है, Q है वो जिनमें ब्लड टाइप B है, और R वो हैं जिनमें ब्लड टाइप O है। ठीक है, या इस जीन का वर्जन O है। तो अब ये इन तीनों की प्रोपोर्शन हमें पता है। इन तीनों की प्रोपोर्शन के ऊपर अगर इनकी प्रोपोर्शन पता हो तो इनके ऊपर डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन में जो मिक्स जीन्स होंगी उनकी प्रोपोर्शन क्या होगी। अब जाहिर है हर पूरी पॉपुलेशन में एक ना एक जीन तो सब में प्रेजेंट होगी ना, एक ना एक जीन तो सब में प्रेजेंट होगी। तो कम से कम एक जीन जो है वो सब में प्रेजेंट होती है। तो अब ये जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जिनमें जीन ए है और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जिनमें बी है जीन और जिनमें आर है, इन तीनों को आप ऐड करेंगे ना, ये प्रोपोर्शन है, याद रखिएगा, ये रेशो होती है प्रोपोर्शन। तो ये सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये तो हमें पता है, नोन है, सब में एक ना एक ब्लड टाइप तो होगी, और जब सबको ऐड करेंगे तो आपके पास सारी पॉपुलेशन आ जाएगी। तो जब 1 हो जाएगी प्रोपोर्शन, इसका मतलब है सारी की सारी पॉपुलेशन इंक्लूड हो गई है। अब क्या होता है, आपने ये फाइंड करना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन है लोगों की जिनमें मिक्स जीन टाइप हो सकती है। ठीक है, कितनी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है उनमें मिक्स 2 जीन्स एक ही वक्त में प्रेजेंट हो सकती हैं, मिक्स जीन प्रेजेंट हो सकती है। तो ये आपने ज्यादा से ज्यादा फाइंड करना है। अब ये P आपको पता है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो मिक्स जीन कैरी कर सकती है ना। तो अब आपने ये फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, और आपको ये कंडीशन गिवन है कि P + Q + R = 1। अब आपने ये इनिशियल फंक्शन देख लें, ये 3 वेरिएबल्स का है। ठीक है, इनिशियल फंक्शन हमारा 3 वेरिएबल्स का है, लेकिन इसके ऊपर एक लकीली हमें कंडीशन गिवन है, तो हम 3 वेरिएबल के फंक्शन को 2 वेरिएबल में इस कंडीशन को यूज करते हुए कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये इस प्रॉब्लम को आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो इसको अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के तौर पे देख सकते हैं, और एक कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम से देखेंगे तो फिर जाहिर है इसको हमें किसी और तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ये थोड़ा सा देख लें कि ये कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था, लेकिन इसको मैं अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिर इसको यूजुअल कैलकुलस के मेथड से
सॉल्व कर सकता हूँ। कभी कभार हम कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जब हम स्टडी करेंगे उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में। लेकिन ये सिनारियो हमेशा वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब कंडीशन है। इसमें मैंने करना क्या, आपको आप बहुत बेहतर पता है कि मैंने इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को बाकी दो वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है और फिर इसको वापस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन आ जाएगा 3 वेरिएबल की बजाय। अब ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ना, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन भी पढ़े हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन भी पढ़े हैं कैलकुलस में। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जब एक वेरिएबल को आप बाकी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इम्प्लिसिट के केस में नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इम्प्लिसिट कंडीशन होगी फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक वेरिएबल की वैल्यू तो उसमें से नहीं निकाल सकेंगे। तो अब ये इस तरह के सिनारियोज बहुत सारे होते हैं। वैसे भी जब हम इसको कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की फॉर्म में करके करते हैं तो हमें प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा इनसाइट नहीं मिलता। लेकिन जब हम इसको एज अ कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ही करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इनसाइट हमें मिलता है कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं उनका क्या मतलब है, वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसको लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा टूल नहीं पता जिससे मैं कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को कर सकता हूँ, तो मैं इसको एज अ अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही करता हूँ। मे बी जब मैं कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में चला जाऊंगा तो शायद इसी प्रॉब्लम को मैं दोबारा कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से कर दूंगा। तो अभी इसको एज एन अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम करते हैं। तो अब मेरे पास ये प्रॉब्लम था p इज इक्वल टू 2pq प्लस 2 लेट्स से pr कर लेते हैं प्लस 2rq, ठीक है। और p प्लस q प्लस r जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये p है, ये फंक्शन है ना, प्रोपोर्शन है, इसको ये फंक्शन है ऑफ कोर्स p q r का, ऐसे ही है ना, और ये इसके इक्वल है। अब यहाँ से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू लेट्स से फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, r लेट्स से इज इक्वल टू 1 माइनस p माइनस q, ठीक है। अब इसको मैं वापस इसमें प्लग कर देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू पी क्यू प्लस 2p इंटू 1 माइनस p माइनस q प्लस 2 इंटू 1 माइनस p माइनस q इंटू q, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आ गया, सही है। अब इस फंक्शन को थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं ताकि हम इसके जब आपको पता है हमने डेरिवेटिव्स वगैरह कैलकुलेट करने तो हमें इतनी इसमें ट्रबल ना हो। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको ये लिख लें, ये हो जाएगा 2p हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2pq हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस 2q मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 2pq मिल जाएगा और फिर फाइनली आपको मिलेगा माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन जिस मैंने मल्टीप्लिकेशन की है। अब अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो उसको आप कैंसिल कर दें, ये दोनों शायद कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कैंसिल हो जाएगी। तो आप ये कर लें, 2p कर लें माइनस 2p स्क्वायर कर लें और फिर प्लस 2q कर लें माइनस 2q स्क्वायर कर लें माइनस 2pq कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया और ये वाला फंक्शन जो है ना इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है फंक्शन ऑफ p एंड q, सही है। 2 वेरिएबल्स का फंक्शन बन गया। अब 2 वेरिएबल्स के फंक्शन को मुझे पता है कैसे मैंने ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है ना इसको। तो मैक्सिमाइज करना है तो इसके डेरिवेटिव्स मैंने फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, वो करेंगे तो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, x तो इसमें वेरिएबल नहीं है ना। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4p हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस 2pq है, तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 2q आपको मिल जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसी p को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वो करेंगे आप, आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस 4q आ जाएगा
-2p आ जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कभी भी अनडिफाइंड तो नहीं हो सकती ना, ये ज़ीरो हो सकती हैं। तो अब आपने इसके बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसको मैक्सिमा फाइंड करना है कि कहाँ पे कितने मैक्सिमम पीपल हो सकते हैं, उसकी प्रोपोर्शन क्या है कि उनमें मिक्स जीन टाइप हो। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको दोबारा टेकअप करेंगे। अगर आप नहीं कर सके तो अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको रिजॉल्व करें। तो इंशाल्लाह फिर अगर पॉसिबिलिटी हुई तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम दोबारा टेकअप करेंगे। ओके, अब मैं ये भी एक अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट किया था। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे करना चाह रहा हूँ, ऐसी थ्योरी डेवलप करना चाह रहा हूँ जो हमें कॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करे। ठीक है, तो ये अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन तो हमने कर ली। तो अगर हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हों जिनके ऊपर एक कॉन्स्ट्रेंट हो, ठीक है, एक कंडीशन हो जिसके अंडर रहते हुए हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में रिस्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रेंट्स यूजुअली होती हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्ट्रेंट्स यूजुअली होती हैं आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। इन रिस्ट्रिक्शंस को हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर रह के वह अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप इन पैरामीटर्स को ओबे नहीं करेंगे तो आप मतलब आपका प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व नहीं है। तो आपने जितने भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूजुअली होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रेंट होती है जो उस प्रॉब्लम को गवर्न करती है। ठीक है, उसके उस प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है उसमें उस कंडीशन का, उस कॉन्स्ट्रेंट का, उस रिस्ट्रिक्शन का काफ़ी रोल होता है। तो उन कॉन्स्ट्रेंट्स, उन कंडीशंस वो फिक्स होती हैं, उनसे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जब तक वो कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्ट्रेंट्स फॉलो नहीं होती तो वो जो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो अब जिन प्रॉब्लम्स के साथ कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो हम उनको ऐसी ऑप्टिमाइजेशन को कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमा कह देते हैं या कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कह देते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके ऊपर कंडीशन लगी हुई होती है। ठीक है, और किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशंस कहाँ से आती हैं? यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और उनको हमने एलोकेट करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमाइज हो जाएं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाएं। रिसोर्सेज लिमिटेड, हमेशा लिमिटेड होते हैं। जैसे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट मनी होती है, आपके पास लिमिटेड लेट्स से रॉ मटेरियल होता है। अगर आप एक फैक्ट्री को रन कर रहे हैं और आपने अपने ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं, आपके पास लिमिटेड वर्क फोर्स होती है और आपके पास जो भी काम होता है आपने उसी से लेना होता है, उसी के थ्रू कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के साथ अटैच्ड होती है ना, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशंस, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम के ऊपर होती हैं। आपके पास अगर पैसे ही 1 लाख रुपया है खर्च करने के लिए तो अब आप उससे ज़्यादा तो नहीं खर्च कर सकते ना, जितने आपके पास हैं उतने ही खर्च करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप दिन में होते ही 24 आवर्स हैं तो आप अपने फैक्ट्री को 24 आवर्स से ज़्यादा तो रन नहीं कर सकते ना। और आपके पास 50 लोग हैं काम करने वाले तो 50 लोग ही काम करेंगे और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 50 लोग आपके लिए टोटल 24 आवर्स रोज़ाना काम करते रहें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो आपने उन्हीं रिसोर्सेज को उन्हीं कंडीशंस के अंदर रहते हुए, उन्हीं कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए आपने सब कुछ करना होता है। ठीक है, आपने जो एक प्लेन बनाना है, डिज़ाइन करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना है, उसके ऊपर कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप प्लेन में जाते हैं ना तो आप हैंड कैरी जो बैग होता है तो अक्सर एयरलाइंस में उसके ऊपर कंडीशन है कि उसकी डायमेंशंस ये होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा डायमेंशंस का आप बैग लेके जाते हैं तो यूजुअली वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब ज़ाहिर है आप उन डायमेंशन का बैग बनाना चाह रही है कंपनी, तो आप वो ये तो नहीं चाहेंगी ना कि आप बैग हैंड कैरी कर रहे हैं उसमें कुछ आ ही ना।
ठीक है। तो वो फिर उस तरह का बैग डिजाइन करना चाह रहे हैं जिसमें आपके काफी सारा सामान भी आ जाए, लेकिन वो उस एयरलाइन की रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करता हो। अब कुछ जगह पे पोस्टल सर्विसेज होती हैं, कुछ कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी शायद कुछ पोस्टल सर्विसेज ये कोरियर सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज ये रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि वो जो उनका पैकेज है ना उसका सर्टेन साइज होगा, ठीक है। इससे ज्यादा साइज जो है ना वो पोस्टल मेल में नहीं जा सकता है, फिर आपको उसको कार्गो करना पड़ता है फॉर एग्जांपल। तो अब आपने वो जो बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना पैकेज डाल रहे हैं उसकी सर्टेन डायमेंशंस होंगी जो उस कोरियर कंपनी की, उस पोस्टल कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए आपने अपना जो बॉक्स है उसको डिजाइन करना है। और आप जाहिर अब आप चाहते हैं कि कार्गो सर्विसेज के ज्यादा चार्ज करती हैं, उसके ऊपर टाइम में भी ज्यादा लगता है। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस से या आपको एक कोई चीज भेजना चाह रहे हैं तो उसको आप पोस्टल सर्विसेज से अगर भेजना चाह रहे हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे कि आपने जो भी चीज भेजनी है आप उन्हीं डायमेंशन की रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए जो भी बॉक्स आप यूज करें तो उसमें आ जाए। तो फिर आपने जाहिर है उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है कि आपका जो बॉक्स है उन डायमेंशंस को फॉलो करता हो जो डायमेंशंस आपको पोस्टल सर्विसेज ने दी हुई हैं, ठीक है। अब इसी तरह कुछ और भी बहुत सारे और सिनारियो हो सकते हैं जिसमें ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। ऑप्टिमाइजेशन के बगैर उन रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर रहते हुए ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। अगर उन रिस्ट्रिक्शंस को आप फॉलो ना करें तो पूरे प्रॉब्लम की कोई सेंस नहीं बनती। अब आप किसी को ये बताते हैं उसके पास 1 लाख रुपया है, उसको अगर आप ये कहते हैं कि आप लेट्स से आपकी कंपनी है तो अगर आप इसमें 50 लाख रुपया खर्च करें ना तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको क्या फायदा है इस सोल्यूशन का? उसके पास तो जितने पैसे हैं वो उतने ही पैसे हैं। आप वो या तो आप उसको खुद 49 लाख साथ देना तो फिर आप उनसे कहें कि ये प्रॉब्लम आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। तो आपने उनको ऐसा सोल्यूशन बताना होता है जो उनकी अंडरलाइंग पैरामीटर जो ऑलरेडी फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शंस है उनको फॉलो करता हो। अगर उनमें से वो किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर रहा तो आपने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है वो यूजलेस है। उस सोल्यूशन का आपके क्लाइंट को जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब इसी तरह बहुत सारी और सिनारियो, आपने स्टॉक मार्केट में वर्किंग करनी है, वहाँ आपके पास फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। स्टॉक मार्केट कुछ ना कुछ लॉज के अंदर चल रही होती है। आपने बैंकिंग करनी है तो बैंकिंग के अंदर आप अगर आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिलीव करते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट देगा, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। फिर आपने इतने सारे बैंक्स हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट रेट है, सबके अपने अपने चार्जेस हैं। तो फिर आपने अपनी मनी को कहाँ रखना है कि वो सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आप एनालाइज करें और फिर उन रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए आप ऐसे बैंक में पैसे रखें जहाँ पे आपका जो पैसे हैं वो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट दें। अब जाहिर है इसमें रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की हो सकती हैं। अब एक ऐसा बैंक है जो पाकिस्तान में प्रेजेंट ही नहीं है और वो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपके लिए तो वो बैंक यूजफुल नहीं है ना। आपने तो वो बैंक पाकिस्तान में होना चाहिए। अब पाकिस्तान में भी एक ऐसा बैंक है जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है लेकिन उसकी ब्रांच आपकी विसिनिटी में नहीं है, तो आपको जाहिर है वो बैंक भी आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। तो फिर इसके अलावा और रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं? आप एक ऐसा बैंक है जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है लेकिन आपको वो कहते हैं कि आप 5 साल तक अपने जो मनी है उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप निकलवा नहीं सकते बैंक से, लेकिन आप 2 साल बाद आपको अमाउंट वापस चाहिए, तो फिर वो बैंक भी आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिनारियोज हैं, कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अक्सर आती हैं जो हमने ओबे करनी होती हैं। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है कॉन्स्ट्रेंट्स हैं प्रॉब्लम की, ठीक है। इन कॉन्स्ट्रेंट में रहते हुए आपने सब कुछ करना है। अब एविएशन इंडस्ट्री है, फ्यूल का प्रॉब्लम रहता है हमेशा, फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है, जितना ज़्यादातर जो कॉस्ट है एविएशन इंडस्ट्री की उनमें एक खासा प्रोपोर्शन फ्यूल कंजप्शन का है। अब आप ऐसे प्लेन्स बनाना चाह रहे हैं जो मतलब जिनका वेट कम हो, वो फ्यूल कंजम्पशन उनकी कम हो लेकिन उनमें कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए। अब ये भी आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उनकी डायमेंशंस रखें, क्या उनका वेट कैसे कम करेंगे, क्या आपके पास उनकी कैपेसिटी फिक्स करेंगे ना आप
मतलब इतनी कैपेसिटी का एयरप्लेन आपसे मांगा जा रहा है, 500 लोग उसमें बैठ सकते हों, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री में एक और प्रॉब्लम होता है, रूट जो उन्होंने बनाने होते हैं। अब आपको ये पता है कि हर एयरलाइन जो है हर रूट के ऊपर ऑपरेट नहीं करती है, और यूजली हर एयरलाइन के ऊपर सर्टेन साइज के प्लेन्स होते हैं ना। अब उन्होंने केयरफुली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि एक एयरलाइन अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेन्स खरीद सकती है और हर साल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेन्स फ्लाई कर सकती है, ऐसा नहीं होता। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतने प्लेन्स आप एनुअली फ्लाई करेंगे या इतने प्लेन्स आप मंथली इतनी फ्लाइट्स करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, आपके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब उन्होंने उसी में रहते हुए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करना है। तो अब वो उन्होंने हर चीज़ को एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर से दुबई के लिए एक एयरलाइन फ्लाइट चलाना चाह रही है, तो उसने पूरा मार्केट में रिसर्च करनी है कि ऑन एवरेज हर रोज़ की जो मेरी फ़्लाइट है उसमें कितने लोग होंगे। तो अगर इतने लोग होंगे तो मुझे इस साइज़ का प्लेन चाहिए। वो इतना छोटा प्लेन भी नहीं चाह रहे कि जो उनके कस्टमर्स हैं उनको फ्लाइट ही ना मिले, और वो इतना बड़ा प्लेन भी नहीं चाह रहे कि 10-20 उसमें लोग बैठे हों और बाकी सारा प्लेन खाली हो। तो ये सब कुछ उन्होंने केयरफुली एनालाइज करना होता है। अगर एक भी पैरामीटर इसमें से मिसप्लेस हो जाए तो यहाँ पे आप बिलियंस की बात कर रहे हैं, आप स्मॉल अमाउंट्स नहीं है कि आप मतलब कि कोई कंपनीज इसको बेयर कर सकती हैं लॉस को। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हो हमेशा जो हमारा प्रॉब्लम होता है ऑप्टिमाइजेशन का, वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए होता है, ठीक है। तो जब हम अच्छे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अभी हम स्मॉल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं क्योंकि हम जो थियरीज डेवलप कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल हैं, इतनी पावरफुल नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। तो अब जब हम थोड़ा सा कैलकुलस से आगे चलेंगे तो हम कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें भी करेंगे जो इतनी जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो जब हम उन केसेस में चले जाएंगे फिर हमारे पास ये मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ हम जा सकते हैं कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में इतनी रिस्ट्रिक्शंस वाले फंक्शंस हमें मिलते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आप वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आप कहते हैं कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए। अच्छा, अब हर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, और मतलब ज़्यादातर फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ जाता है उनका। फिर आप कहते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अब फंक्शन कंटिन्यूस हो भी जाए तो ज़रूरी नहीं है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। और फिर जो रियल लाइफ के फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आपको डिफरेंट बिहेवियर्स दे रहे होते हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है वो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें फिर आप 2 वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आप कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका सेकंड डेरिवेटिव्स तक कंटिन्यूस होने चाहिए। तो ये काफ़ी पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फंक्शंस के ऊपर हम लगा रहे हैं, तब ये कैलकुलस की ऑप्टिमाइजेशन वर्क कर रही है, ठीक है। तो जितने भी हम फंक्शंस लिख रहे हैं उनके ऊपर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस, ऑफ कोर्स हम पर्पसफुली ऐसे फंक्शंस लिख रहे हैं जिनके ऊपर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस मीट हो रही हैं। तो जब हम ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जब इसके बाद हम नई थ्योरीज भी डेवलप करेंगे, तो स्टडी करेंगे उनके यहाँ पे वर्किंग देखेंगे, तो उसमें फिर हम मज़ीद प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्शंस होपफुली आपको समझ आ गई होंगी, मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको दी हैं जिससे रिस्ट्रिक्शंस आपके कॉन्स्ट्रेंट क्यों होती है हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होंगी। तो अब मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि हमारे पास वी हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अटैच टू आवर ऑब्जेक्टिव। जब भी हमने कोई ऑब्जेक्टिव बनाना है, अभी हमने काफ़ी डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन की कि उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसके साथ अटैच होगा, ठीक है, तभी वो रिक्वायरमेंट बन रही है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स, हर चीज़ जो भी आप बना रहे होते हैं ना, उसके आपका ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होता है। फॉर एग्जांपल आप एक घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें
कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है आपके पास जो स्पेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, अब ये आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके पास जो रूम्स का साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए और रूम्स ज़्यादा होने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन आपके पास स्पेस लिमिटेड होगी ना जिसमें आप घर बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना आप जितनी मर्जी स्पेस लेके उसमें घर बनाना शुरू कर दें। तो जितने आपके पास पैसे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप स्पेस लेंगे, उसमें घर बनाएं। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि वेंटिलेशन घर में ज़्यादा होनी चाहिए, क्रॉस ब्रीज मूवमेंट होनी चाहिए। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सनलाइट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए घर में। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो हीट लॉस है ना घर में, जो अंदर लेट्स से आप किसी काफ़ी कूल प्लेस पे रहते हैं, ऐसी प्लेस है जिसमें वेदर जो है वो काफ़ी कूल होता है, टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, तो आप घर को हीट अप करते हैं। तो अगर आपकी वॉल्स ऐसी हैं घर की कि जब आपकी हीटिंग जो है ना वो घर से वॉल से जो है ना वो बाहर चली जाती है, तो फिर जाहिर है आपका हीटिंग का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर इस ऐसे केस में हम घरों को इंसुलेशन करते हैं ना, तो अब आपकी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हीट लॉस जो है ना वो घर में से मिनिमम हो, हीट लॉस जो है ना मिनिमम, जितना कम अज कम कर सकते हैं ना हीट लॉस उतना कम हो। फिर जाहिर है उसमें किसी चीज़ के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार होंगे। मे बी जो विंडोज़ हैं वो घर में आप इतनी ज़्यादा ना हो, हीट लॉस मिनिमाइज करना है ना, तो विंडोज़ से यूजली ग्लास होता है, ग्लास जो है वो हीट लॉस को इनकरेज करता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी, जो भी आप चीज़ बनाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस तरह की सब चीज़ों के ऊपर हमेशा आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये साइज़ होगा, ये उसकी डायमेंशंस होंगी, इस तरह की चीज़ होगी, इस तरह उसको स्टॉक करना है, इतनी स्पेस है स्टॉक करने के लिए, इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, इतनी गाड़ियां हैं जो उनको ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, इस जगह प्लांट्स हैं। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपकी ऑलरेडी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अटैच हैं। तो इनको आपने माइंड में रखना है। तो अगर मैं इन अ नटशेल कहूँ कि रिस्ट्रिक्शंस आर की इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी रियल लाइफ प्रॉब्लम, जब भी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन होती है, ये उसका की इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर जो है वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स यूजुअली होते नहीं हैं। मतलब बहुत अच्छा होगा लेट्स से कि हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हों, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम हो, सब कुछ अनलिमिटेड हो और सब कुछ, फिर प्रॉफिट्स भी हमारे अनलिमिटेड होंगे और सब मतलब सही चल रहा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल है दुनिया में, उसको आपने मैक्सिमाइज करना है। रोज़ आप ये देख रहे होते हैं कि नई गाड़ी अगर आ रही है तो वो कहते हैं कि हमने फ्यूल कंजम्पशन को मिनिमाइज किया है, कि हमारी गाड़ी सबसे कम फ्यूल की कंजम्पशन दे रही है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे लिमिटेड हैं, वहाँ पे भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन लग रही है, किस तरह हम इन्हीं फ्यूल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आप मैक्सिमाइज करें अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस और फ्यूल जो है वो कम से कम स्पेंड हो। अब आप एक वे तो ये है कि आप फ्यूल बंद कर दें और फ्यूल आपका यूज़ ही नहीं होगा। ज़ाहिर है आपने गाड़ी को रन भी तो करना है ना, उसके बगैर तो फ्यूल की मैक्सिमाइजेशन नहीं, मिनिमाइजेशन नहीं हो सकती ना। या फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही कम कर दें, ये भी डिज़ायरेबल नहीं होता। अब आपने गाड़ी चलानी भी है ना, तो आपने वो पैरामीटर्स जो गाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं कम होने देनी, लेकिन फिर भी फ्यूल कम करना। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हैं, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, इनकी की इंग्रेडिएंट होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस के बगैर रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स अकर नहीं करते हैं यूजुअली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वो प्रॉब्लम्स इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट्स भी होती हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट लगा दें तो उसमें प्रॉब्लम में मैक्सिमम मिनिमम में क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलते हैं। ओके, तो हमारी कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अभी मैंने आपके लिए स्टेटमेंट दी कि जब हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट लग जाती है, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो उसके साथ मैक्सिमम मिनिमम में क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये देखें, ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है, ये
का एक मैथमेटिकल फंक्शन या रियल लाइफ फंक्शन का ग्राफ है। आप होपफुली जो अपने से कैलकुलस में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं उनको शायद पता चल भी गया होगा कि ये ग्राफ किस चीज़ का है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को देख लें। ये बहुत सिंपल मैंने ग्राफ बनाया हुआ। इसका ये मैक्सिमा है ना मैक्सिमा। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इससे स्मॉलर हैं, तो ये इसका मैक्सिमा है। अब ये देखें कि ये इसका मैक्सिमा है बगैर किसी कांस्टेंट के। इसको मैं कह रहा हूँ ये फ्री मैक्सिमम है, कांस्टेंट के बगैर मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगा दूं इसी ग्राफ में रहते हुए, अब मैं कांस्टेंट मेरी ये है कि आपने जो भी मैक्सिमा फाइंड करना है ना वो इस रीजन के अंदर फाइंड करना है। ये जो रीजन आपके सामने आ रहा है ना, ये जिसको हमने ब्राउन कलर किया हुआ, ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है। इसी का एक पोर्शन है ग्राफ का। अब जो आपका मैक्सिमा या मिनिमा है ना वो अब इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि आपका मैक्सिमा मिनिमा अगर इस कर्व के अंदर आ जाए, इस कांस्टेंट के अंदर आ जाए, तो फिर जाहिर है आपका मैक्सिमा ये बन जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है ये वाला मैक्सिमा इसका मैक्सिमा तो नहीं है ना, ये तो इसके अंदर ही नहीं है, मैक्सिमा उसी के ऊपर होना चाहिए ना। और इसी तरह ये वाला मैक्सिमा इसका मैक्सिमा नहीं है क्योंकि इसमें ये बिगेस्ट वैल्यू है। तो जो कांस्टेंट का मैक्सिमा होता है ना वो जरूरी नहीं है कि अनकॉन्स्टेंट फंक्शन का भी मैक्सिमा हो। कभी कभी होता है कि अनकॉन्स्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन दोनों का मैक्सिमा सेम हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जिससे होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कांस्टेंट लगा देते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा में क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि कांस्टेंट मैक्सिमा और अनकॉन्स्टेंट मैक्सिमा जो है वो डिफरेंट होते हैं यूजुअली, क्योंकि हमने अनकॉन्स्टेंट मैक्सिमा जो करना होता है उसमें हमने ये करना होता है कि जो कांस्टेंट जो कंडीशन आपने लगाई हुई है उसकी अगर कोई कर्व बन रही है तो उस कर्व के ऊपर अब उस ग्राफ का आपने मैक्सिमा फाइंड करना है। ठीक है, उस कर्व के इंटीरियर में या उस कर्व की बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा आपने फाइंड करना है। तो अब जो आपका उस कर्व के बाहर मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे ना। तो जो भी पॉइंट्स अब उस कर्व के ऊपर आ रहे हैं, उस कांस्टेंट के ऊपर आ रहे हैं, वो मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट्स होंगे आपके। ठीक है, अच्छा चलें, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कांस्टेंट मैक्सिमा या कांस्टेंट मिनिमा क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। करना ये है कि मेरे पास है एक प्लेट है, मेटल प्लेट है। ठीक है, लेट्स से किसी भी तरह की मेटल प्लेट हो सकती है। ये मेटल प्लेट है लेट्स से। ठीक है, अब इस मेटल प्लेट का टेम्परेचर मुझे पता है हर पॉइंट के ऊपर, इसके ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इस मेटल प्लेट के हर पॉइंट का टेम्परेचर मुझे पता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो। किसी भी मेटल प्लेट में लेट्स से आप उस मेटल प्लेट को हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पॉइंट का टेम्परेचर और जो एजेस हैं जहाँ पे हीट बहुत बाद में पहुंच रही है उन दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप कोई चीज़ हीट अप कर रहे होते हैं तो आप उसको यूजुअली उसके जो एजेस हैं उससे पकड़ भी सकते हैं स्टार्ट में इनिशियली, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर आप हीट प्रोवाइड करें उस पॉइंट को आप टच भी नहीं कर सकते, ऐसे ही ना। तो डिफरेंट एक ही मेटल प्लेट के डिफरेंट पॉइंट्स का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनका टेम्परेचर मुझे पता है। कोई भी आप पॉइंट मुझे बता दें इस प्लेट का, उसका टेम्परेचर मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेटल प्लेट है, मैं कहता हूँ एक एंट है, वो इसके ऊपर स्टार वॉक कर रही है ना, मेटल प्लेट के ऊपर वॉक कर रही है। मेटल प्लेट का टेम्परेचर है, उसके ऊपर इसने वॉक करनी स्टार्ट की है और वो एंट इस तरह वॉक कर रही है कि ये लेट्स से ये मेटल प्लेट का ओरिजिन है। अगर इसको आप एक्स वाई एक्सिस में रखें तो ये ओरिजिन का पॉइंट हो जाएगा मेटल प्लेट का। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, वो उसने यहाँ से वॉक स्टार्ट की है और वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव हो रही है। तो जो उसकी मूवमेंट है ना एंड की, वो इस डायरेक्शन में लेट्स से वो ऐसे वॉक कर रही है, इसी सेंटर के अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस पाथ के ऊपर मूव कर रही है ना वो एक सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस है 5। ठीक है, सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस है 5।
अब आपने ये बताना है कि ये जो उसकी वॉक है उसके दौरान जो है वो उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कितना इनकाउंटर करेगी वो, और मिनिमम टेम्परेचर कितना इनकाउंटर करेगी। अब मैंने तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल कर दिया ना। अब देखें, इस प्रॉब्लम को आप बहुत बड़े स्केल पे भी देख सकते हैं और बहुत छोटे स्केल पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखें, एक फ्लाइट यहाँ से लेट्स से लाहौर से फ्लाई कर रही है और उसने जाना है मे बी लेट्स से लंदन जाना है, ठीक है। अब आपने जो प्लेन है उसकी यूजुअली स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि वो इतने टेम्परेचर तक फ्लाई कर सकता है, इतने टेम्परेचर तक जो है ना उसकी बॉडी सरवाइव कर सकती है। इससे कम टेम्परेचर हो जाए और बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए, दोनों केसेस इतना हाई नहीं हो सकता क्योंकि जिस आल्टीट्यूड पे वो फ्लाई करते हैं तो वो बहुत लो टेम्परेचर्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो बॉडी है वो बहुत रिजिलियंट होती है। लेकिन जो स्मॉल प्लेन्स है फॉर एग्जांपल, उनकी जो आउटसाइड बॉडी है उनकी इतनी ज़्यादा रिजिलियंट नहीं होती। तो अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा फिर कि यहाँ से लेके लंदन तक आप ये बताएं कि पूरे रास्ते में जो प्लेन है उसको मिनिमम टेम्परेचर वो क्या इनकाउंटर करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर वो क्या इनकाउंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके पाथ के ऊपर चाहिए। अब आपको मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप पूरे वर्ल्ड का बता दें उस वक्त, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उस पाथ के ऊपर जो प्लेन ऐसे किसी आर्बिट्ररी पाथ के ऊपर तो फ्लाई नहीं करते ना, वो उनका सर्टेन एक रूट होता है, तो उस रूट के ऊपर फ्लाई करें। अब उस रूट के ऊपर आप बताएं कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है। अब आपने एक मिशन है, लेट्स से स्पेस शटल है, वो आपने मार्स पे भेजनी है। अब स्पेस शटल भी सर्टेन मटेरियल से बने होते हैं, उनको भी टेम्परेचर के इफेक्ट्स होते हैं ना, तो अब वो टेम्परेचर के इफेक्ट्स आपने एनालाइज करने होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेके मार्स तक और मार्स के अराउंड अगर उसने घूमना है तो उस पूरे राउंड में वो कितना, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर वो कितना इनकाउंटर करेगा और मिनिमम टेम्परेचर वो कितना इनकाउंटर करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डिजाइन करना है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर को भी बेयर कर सके और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर को भी बेयर कर सके। तो ये दोनों चीजें आपने इसमें देखनी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अब कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल वो आप एक कोल्ड कंट्री से लेके आते हैं और लेट्स से पाकिस्तान के हॉट वेदर में लेके आते हैं, तो वो सरवाइव नहीं करती हैं। अब रीजन ये है कि अब वो चीज जो है वो उस वेदर के लिए बनी है, ठीक है। अगर आप उसको किसी और वेदर में लेके जाएंगे, उसके ऊपर वो टेम्परेचर स्पेसिफिकेशंस टेस्ट ही नहीं की गई कि अगर ये इतने हाई टेम्परेचर में चली जाएगी तो फिर क्या होगा उस प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए ये टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर, सर्टेन रूट्स के ऊपर ये इंपॉर्टेंट होती है, इनको टेस्ट करते हैं हम। मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ आपको इस प्रॉब्लम का। आप ये कहेंगे कि इस आंट के इस टेम्परेचर में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो हम बेसिकली हमेशा स्मॉल लेवल के प्रॉब्लम लेते हैं और फिर उसको बिगर लेवल के प्रॉब्लम के ऊपर हमेशा ट्रांसलेट करते हैं। अब आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस प्लेट के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा है, आप यहाँ पे आपने लिट रखी हुई है, लेकिन आप ये नहीं फाइंड करना चाह रहे। आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये जो इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, रेडियस 5 के सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर का पॉइंट है, कौन सा मिनिमम टेम्परेचर का पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में डिफरेंस है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में और अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने क्या, अगर इसको मैथमेटिकली प्रॉब्लम को लिखें तो आप ये कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज करें टेम्परेचर को टी ऑफ एक्स वाई, जो किसके इक्वल है, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल है 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई, 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये टेम्परेचर है, इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, एक्सट्रीमाइज करना इसको कह सकते हैं। और फिर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट क्या है, कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास होगी
क्या कॉन्स्टेंट है कि इस सर्कल के ऊपर जो टेम्परेचर आ रहा है ना, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वो करना। और आपको पता है रेडियस 5 का जो सर्कल है उसकी इक्वेशन होती है x² + y² = 5। अब ये आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन गया जो हमने अभी प्रॉब्लम देखा था कि ये टेम्परेचर की इक्वेशन है इस पूरी प्लेट के ऊपर। अब आपने इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दोनों करना है एक्चुअली हमने। तो इसको एक्सट्रीमाइज करना कह सकते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। एक्सट्रीमाइज टेम्परेचर कर्व या टेम्परेचर फंक्शन, टेम्परेचर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टेंट। अब आपने जो भी आप यहाँ से मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करेंगे उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें फ़र्क है कि जो मैक्सिमा मिनिमा आप फाइंड करें उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपकी कांस्टेंट हो गई, ये आपका एक कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, एक दो हम और देखते हैं। ये आपके पास एक और, इसको हमने सिंपल लिख दिया कि ये हमारे पास दूसरा कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि ये फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है और इस कांस्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू दिस कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। ठीक है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जैसे अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी करेंगे, ऑफ कोर्स सॉल्व करेंगे, बहुत डिटेल में इनमें जाएंगे हम। अब ये हमारे पास कर्व है f(x(y) = xy। ये मैंने सॉफ्टवेयर से प्लॉट किए हैं, आप भी किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, जैसे मैटलैब अगर आपको आता है, मैपल आता है, मैथमेटिका आता है, सिंपल, बहुत सिंपल जो ग्राफिंग है वो साइंटिफिक वर्क प्लेस में भी हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं जिससे आप फंक्शंस को प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं। वैसे रियल लाइफ में बाय हैंड इन फंक्शंस को 3D में प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये दूसरा प्लेन है x + 2y = 4, ये भी 3D में एक प्लेन है जो मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं एक ही कर्व में प्लॉट करूँ ना यहाँ पे, तो अगर लेट्स से ये प्लेन कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, पता नहीं कहाँ पे आएगा, अगर हम कंप्यूटर से इसको भी प्लॉट करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेट्स से ये प्लेन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इस प्लेन के ऊपर जो अब इसके पॉइंट्स है ना उनके ऊपर हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है ओरिजिनल जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, तो अब इस कांस्टेंट के अंदर ये वाले जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इनके अंदर मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है। ठीक है, या इस बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है। ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये वाले अब मैक्सिमा मिनिमा हों भी तो हम इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जब मैक्सिमा मिनिमा करना है फंक्शन का, लेकिन इस कांस्टेंट के अंदर रह के, इस कर्व जो कांस्टेंट कर्व है इसके अंदर रहते हुए उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दूसरा एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम और भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स करते हैं। एक एग्जांपल शायद मैं और दे दूंगा आपको, ये थर्ड एग्जांपल है मेरे पास। क्या मैं कह रहा हूँ कि आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, उसकी लिड नहीं है। ठीक है, मतलब उसका टॉप नहीं बनाना, ओपन बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें रखनी है जिसको आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है या उसको कवर नहीं होना चाहिए, ताकि लेट्स से आपने डिस्प्ले करनी है चीज़ें तो डिस्प्ले में आप बॉक्स में कवर नहीं होगा। और इसी तरह और बहुत सारी ऐसे सिनारियोज हो सकते हैं जिसमें आपने बॉक्स को कवर नहीं करना होता, जस्ट आपने बाकी साइड्स उसकी डिज़ाइन करनी है। उसका जो जितना आप टोटल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ना, वो 12 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 12 स्क्वायर मीटर आपको मटेरियल अवेलेबल है, उससे ही आपने बनाना है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना, जो आप वॉल्यूम इसमें कंटेन कर सकते हो, वो मैक्सिमम वॉल्यूम हो। ठीक है, अब फिर रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, इतना ही बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कैबिनेट बनानी है आपने। ठीक है, कैबिनेट बनानी है, इतना कार्डबोर्ड अवेलेबल है 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बड़ी शीट है मेरे पास, इससे बड़ी शीट जो है ना वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं उसको परचेज नहीं कर सकता। मुझे ऐसी आप लेट्स से ऐसा आप बॉक्स बना के दें या ऐसी कबर्ड बना के दें जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकूं, मतलब उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा हो। उसका डोर आप ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें जो
का चीज़ें आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है। तो अब ऐसा बॉक्स मैं बनाना चाह रहा हूँ। देखें, अब ये बॉक्स है, लेट्स से इस प्रॉब्लम को मैं बना देता हूँ, फिर इसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो बॉक्स 3D का बॉक्स मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो ये बॉक्स है लेट्स से, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये है, ठीक है। ये जो साइड्स है ना, ये सब साइड्स यहाँ पे आप बना लें। तो इन सब साइड्स में ये साइड्स यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा हुआ है और ये वाली जो साइड है ये हॉलो है, ठीक है। हॉलो है मतलब ये कि इसके ऊपर कार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ, ये वाली साइड कवर्ड नहीं है, तो इस बॉक्स के ऊपर कोई लिड नहीं है। अब आपने इस बॉक्स को बनाना है 12 मीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स से, और इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम करना आप। तो अब आपको ये पता है कि इसका, अगर मैं लेट्स से इस साइड को x कहूँ, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चाहिए ना मुझे, तो इसको अगर मैं लेंथ कहता हूँ, इसको लेट्स से मैं विड्थ कह देता हूँ, और ये वाली मेरे पास हाइट है। तो अब मैंने इसका सरफेस एरिया जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, 5 साइड्स हैं, 6 नहीं है, तो इन 5 साइड्स में जो मैं सरफेस एरिया यूज़ कर सकता हूँ वो टोटल 12 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया आप बना लें, इतना आसान है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर ये वाली साइड्स x है, ये भी x होगी, ये वाली y होगी, तो ऑफ कोर्स x y एक साइड है, बॉटम मेरे पास है, टॉप नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद बाकी सारी साइड्स हैं, प्रेजेंट हैं। तो 2 साइड्स होंगी जिनकी डायमेंशन x टाइम्स z होगी, और 2 साइड्स ऐसी होंगी जिनकी डायमेंशन y टाइम्स z होगी। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। ये सरफेस एरिया मुझे पता है, जितना टोटल मेरे पास कार्डबोर्ड अवेलेबल है वो है 12 मीटर स्क्वायर, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। और मैंने वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो इसमें टोटल वॉल्यूम जो इसकी कैपेसिटी है वो मैक्सिमाइज करनी है, कि इसमें जो मैं चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टोरेज पॉसिबल हो। अब वो कैसे करूँगा, इस v को आपने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज let's say v is equal to x by z, subject to the constraint। क्या constraint है कि x times y plus 2x times z plus 2y times z is equal to 12। अब ये आपके पास एक और constraint optimization problem बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये पहले देखा हुआ है कि अब ये 3 वेरिएबल का एक कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। हो सकता है आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो इस इक्वेशन में आप एक वेरिएबल को बाकी 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। मुझे मुश्किल लग रहा है, शायद ये पॉसिबल ना हो। तो ये शायद एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल को बाकी 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें कोशिश करके देखें, मे बी आपके लिए पॉसिबल हो, मुझे इतना ये पॉसिबल नहीं लग रहा। तो अगर आप इसमें से एक की वैल्यू निकाल के बाकी v में पुट कर देते हैं तो फिर आप इसको अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बना लेंगे, और अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाने के बाद इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर है अब अगर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये फंक्शन ही इम्प्लिसिट है कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन, तो फिर आपने इसमें केयरफुल होना है कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ नए वेज डेवलप करने हैं जिससे हम ऐसे कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगी हुई है लेकिन उसको हम फिर 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में नहीं लेके जा सकते या अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इनके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की बात करना चाह रहे हैं जिनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। लेकिन होपफुली आज के लेक्चर में जो क्रक्स है, जो मेरा एम था, जो गोल था, वो यही था कि कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन आपको क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम्स कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के कैसे होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स कहाँ से आती हैं,
और अगर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन अनकॉन्स्ट्रेंट हो और कॉन्स्ट्रेंट हो, दोनों में क्या फ़र्क होता है, कैसे कॉन्स्ट्रेंट कैसे इफेक्ट करती है मैक्सिमा और मिनिमा को, ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आज के लेक्चर के लिए। 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए हैं जिनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगी हुई हैं, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हम इसलिए उनको कहते हैं, ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इसका इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सोल्यूशन की बात करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको हिंट तो दे दिया, एक वे है, एक मेथड है लेग्रांज मल्टीप्लायर्स का जो आपने कैलकुलस में देखा हुआ है, उसी मेथड को हम आगे लेके चलेंगे। मैथमेटिक्स साइड आपने कैलकुलस में देख लिया है और यहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन साइड देखेंगे, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर उसको कैसे अप्लाई करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो एक एक प्रॉब्लम करके इसको सॉल्व करेंगे। 5-6 प्रॉब्लम्स और भी हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो जितना पॉसिबल प्रॉब्लम्स हमें जहाँ तक हमें सॉल्व करना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि अगर प्रॉब्लम हो उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शंस हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आज का लेक्चर समराइज कर देता हूँ जल्दी से और फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर को हम यहाँ क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स साइड चीज़ों की ज़्यादा बात नहीं की है, ज़्यादा हमने डिस्कशन की है और जो नया एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसकी डिस्कशन में ही हम ज़्यादा गए। तो स्टार्ट मैंने किया था एक अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम लिया था और उसके सोल्यूशन की बात की। थोड़ा सा आपके लिए सोल्यूशन मैंने कर दिया, बाकी आपके लिए मैंने एक्सरसाइज छोड़ी है, आप इंशाल्लाह उसको कर लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा टेकअप कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमने कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात स्टार्ट की कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जिनके अंदर रह के हमने अपने प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, अब कंडीशंस कैसी होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स कहाँ से आती हैं, ये सब चीज़ें भी हमने इसके ऊपर बात की। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है स्पेंड करने के लिए, उसी को स्पेंड करके आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके लिमिटेड है, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क फोर्स है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हमेशा हमारे प्रॉब्लम के ऊपर होती हैं। आपने लेट्स से प्लेन का वेट मिनिमाइज करना है, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी है, फ्यूल कंजम्पशन कार की आपने मिनिमाइज करनी है, तो सब की सब रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास होती हैं हमेशा रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए हमने अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। आप अगर प्रॉब्लम को बगैर उन रिस्ट्रिक्शंस के सॉल्व कर देते हैं तो वो सोल्यूशन यूजुअली मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपका सोल्यूशन तो फिर उस सोल्यूशन की इतनी वर्थ नहीं है, वेटेज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये है कि आप 5000 यूनिट्स बना सकते हैं डेली, और अगर आप इस सोल्यूशन ये रेकमेंड करते हैं कि आप अगर 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, अब इस सोल्यूशन की कोई वर्थ नहीं है ना। आप ये बताएं कि 5000 में कितने यूनिट्स बनाऊं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो जब भी रियल लाइफ का कोई प्रॉब्लम होगा हमेशा उसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई फिक्स रिस्ट्रिक्शन होगी, उसी पैरामीटर के अंदर रहते हुए मैंने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे आपको मैंने प्रॉब्लम्स की एग्जांपल दी थी कि इन प्रॉब्लम्स में कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है और ये कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती है। फिर उसके बाद 1-2-3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए बहुत डिटेल में कि ये प्रॉब्लम है, इसकी ये कॉन्स्ट्रेंट है और इसके अंदर रहते हुए हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स साइड में हम जाएंगे और इसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस किए हैं एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। नया मेथड मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है लेग्रांज मल्टीप्लायर्स का, वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर नेक्स्ट बात करेंगे। Thank you very much for your time and attention. Hopefully I'll see you again in the next lecture. Hopefully problems clear हुए होंगे, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसके ऊपर टेकअप करेंगे। Thank you very much and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you.